ایک بادشاہ کو ہیرے جواہرات جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کام کے لیے اس نے دنیا کے سارے ملکوں میں اپنے آدمی بھیج رکھے تھے جو اس کے لیے لال و گوہر خرید کر اسے ارسال کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اسے ایک سوداگر نے 9 لکھا ہار پیش کیا۔ اس ہار میں اس قدر خوبصورت ہیرے جڑے ہوئے تھے کہ دیکھنے والا اش اش کر اٹھتا۔ بادشاہ نے وہ ہار اس سوداگر سے خرید لیا اور محل میں جا کر اپنی 40ویں ملکہ کو پیش کر دیا۔ وہ بے حد حسین تھی۔ شام کو ملکہ نے وہ ہار پہنا تو وہ فوراً گدی بن گئی۔ اس تبدیلی کا آنن فانن سارے محل میں شور مچ گیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ دوڑا ملکہ کے پاس پہنچا اور اسے گدی بنا دیکھ کر چیخ پڑا، کس کی شرارت ہے یہ؟ کس بدبخت نے ہماری ملکہ کا یہ حال کیا ہے؟ اس نے فوراً دربار کے مہا جوتشی کو طلب کر کے پوچھا۔ جوتشی وہیں بیٹھ کر حساب کرنے لگا۔ بادشاہ سلامت، جوتشی نے کہا، ملکہ عالیہ کا حلیہ 9 لکھا ہار بیچنے والے سوداگر نے بگاڑا ہے۔ وہ سوداگر اصل میں جادوگر ہے۔ اس نے ملکہ کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا ہے کیونکہ وہ ملکہ کو پسند کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ گدی بن جانے کی وجہ سے آپ ملکہ کو اپنے محل سے نکال دیں گے، جس کے بعد وہ ملکہ کو اپنی وادی میں لے جائے گا اور دوبارہ انسان بنا کر شادی کر لے گا۔ جس وادی میں جادوگر رہتا ہے وہ سامنے والے پہاڑوں کے اس پار واقع ہے۔ وہاں تک کسی انسان کا جانا بہت مشکل ہے۔ بادشاہ نے مہا جوتشی کے انکشاف سے سنا تو آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اسی لمحے جادوگر کو سزا دینے کے لیے محل سے روانہ ہو گیا۔ اپنی سرحد سے نکل کر جوں ہی اس نے گھوڑے کا رخ ان پہاڑوں کی جانب موڑا جن کے دوسری طرف جادوگر کی وادی تھی، کا گھوڑا یکایک مگرمچھ بن گیا، اسے کھانے کو دوڑا۔ بادشاہ نے بڑی مشکل سے اس مگرمچھ سے جان بچائی اور دوڑ کر پاس کے درخت پر چڑھ گیا۔ جوں ہی وہ درخت پر چڑھا، اس درخت نے زور سے سیٹی مار کر ایک سمت کو دوڑنا شروع کر دیا۔ یہ سما دیکھ کر بادشاہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ درخت بھاگتا بھاگتا آخر ایک بڑے گہرے دریا کے کنارے پر پہنچ گیا، جہاں رک کر اس نے بادشاہ کو دریا میں گرا دیا۔ دریا کا پانی کالا سیاہ تھا اور بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ بادشاہ کو بہا کر کہیں کا کہیں لے گیا۔ بادشاہ نے دریا سے نکلنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہ چلی۔ آخر دریا کے پانی نے اسے ایک ایسے جزیرے پر پھینک دیا جس میں بھینس جتنے موٹے بچھو گھوم رہے تھے۔ بچھوؤں کو دیکھ کر بادشاہ کا رنگ اڑ گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ بادشاہ جوں ہی آگے بڑھا تو 2 بچھوؤں نے شیر کی مانند گرج کر اس پر حملہ کر دیا۔ تھا کہ وہ اسے سالم نگل جاتے کہ عین اسی لمحے ایک بہت بڑا ناگ وہاں آ گیا جس نے چشم زون میں دونوں بچھوؤں کو زندہ ہڑپ کر لیا۔ تبھی ایک بہت بڑی چیل گولی کی طرح نیچے آئی اور بادشاہ کو پنجوں میں دبوچ کر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اس چیل نے بادشاہ کو جنگل میں جا گرایا۔ بادشاہ ابھی سیدھا ہی ہوا تھا کہ اس پر چونٹیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ چونٹیاں آدم خور تھیں اور انسان کو ایک پل میں چٹ کر جاتی تھیں۔ جنگل کے سارے جانور ان سے دور رہتے تھے۔ بادشاہ نے اتنی ڈھیر ساری چونٹیاں اپنی طرف آتی دیکھی تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھا۔ چونٹیاں بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگیں کہ وہ اس کو کھا کر رہیں گی۔ پھر اس سے پہلے کہ چونٹیوں کا وہ کارواں بادشاہ کو چمٹتا تو زوردار بارش ہونے لگی۔ بارش اس قدر زوردار تھی کہ ساری چونٹیاں گیلی ہو کر کیچڑ میں پھنس گئیں اور ان سے چلنا مشکل ہو گیا۔ تب بادشاہ کی سانس میں سانس آئی اور وہ ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں؟ جادوگر کی وادی میں کیسے جاؤں؟ پتہ نہیں وہ کدھر ہے؟ پہاڑ بھی نظر آنے بند ہو گئے تھے۔ سوچ کر اس نے واپس محل میں جانے کا فیصلہ کیا اور 100 مصیبتیں اٹھا کر پھر سے محل میں آ گیا۔ محل میں آ کر اس نے مہا جوتشی کو دوبارہ طلب کر کے کہا، جوتشی کوئی ایسا منتر بتاؤ جس کے ذریعے ہم جادوگر کی وادی میں جا سکیں۔ مہا جوتشی نے کہا، بادشاہ سلامت، جادوگر کی وادی کے ارد گرد جادوگر نے جادو پھیلا دیا ہے، کوئی انسان وہاں نہیں جا سکتا۔ مہا جوتشی نے بڑا حساب کر کے کہا، میرے حساب کے مطابق کوئی 14 سال کا لڑکا اس وادی میں داخل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی وقت پورے ملک میں منادی کرا دی کہ جو 14 سال کی عمر والا لڑکا ہمارا یہ کام کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اس منادی کا سن کر بے شمار لڑکے آئے۔ ان میں سے ایک کو بادشاہ اور مہا جوتشی نے پسند کر لیا۔ لڑکا بہت بہادر اور عقل مند تھا۔ اس نے جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو اس کام کے متعلق بتانا ضروری سمجھا۔ ابا حضور، ملکہ کو جادوگر نے 9 لکھا ہار کے زور سے گدی بنا دیا ہے، جس پر بادشاہ نے مجھ کو جادوگر کی اس حرکت کی سزا دینے کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ میں جادوگر کی وادی میں جا رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کے باپ نے اسے شاباشی دے کر کہا، بہت اچھی بات ہے بیٹا، تم جادوگر کو سزا دینے ضرور جاؤ، پر اپنے ساتھ اپنے کتے کیٹو کو ضرور لے جاؤ، کیٹو تمہاری بہت کام آئے گا۔ لڑکے نے کیٹو کو ساتھ لیا اور جادوگر کی وادی کی طرف چل پڑا۔ پھر جو ہی وہ ان پہاڑوں کے پاس پہنچا، کیٹو نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ لڑکے کو کیٹو کے بھونکنے پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے اسے چپ
रहने का इशारा किया, मगर केटू ने और जोर से भौंकना शुरू कर दिया। साथ ही वो लड़के की शलवार मुंह में लेकर उसे एक तरफ खींचने लगा। आखिर लड़का मजबूरन उस तरफ चल पड़ा जिधर केटू उसे ले जाना चाहता था। केटू उसे एक गार के पास ले गया और उसे इस गार में घुसने का इशारा करने लगा। लड़के ने केटू के इशारे पर गार में कदम रखा तो पूरे गार में जलजला आ गया। लड़के को ऐसे लगा जैसे अभी पूरा पहाड़ उस पर आ गिरेगा। वो दौड़कर गार से बाहर निकलने लगा, मगर केटू ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद जलजला बंद हो गया और वो गार में सफर करने लगा। केटू इसके आगे आगे था। काफी आगे जाने के बाद उसने किसी की खौफनाक आवाज सुनी, अगर जिंदगी चाहते हो तो वापस भाग जाओ, वरना मार मार कर भरकस निकाल दूंगा। लड़का समझ गया कि ये धमकी जादूगर ने दी है, लिहाजा वो भी ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, फिर वापस जाऊंगा। लड़के ने अब जादूगर को जवाब ना दिया बल्कि आगे बढ़ने लगा। आखिर वो गार के बाहर निकल आया जहाँ से जादूगर की वादी शुरू हो गई थी। कुछ दूर जाकर उनके रास्ते में एक बहुत ऊंची पत्थरों की दीवार आ गई, जिसे देखकर केटू चैं चैं करने लगा। लेकिन लड़के ने केटू को परेशान देखकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, मगर केटू खौफजदा होकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। केटू के आगे बढ़ने से इनकार पर लड़के को बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा केटू झूठ बोल रहा है, चनाचे उसने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार की तरफ धकेल दिया और कहा, ख्वामखा नखरे ना दिखाओ, चलो इस दीवार को तोड़ो। केटू जैसे ही उस दीवार के साथ लगा अचानक पत्थर का हो गया। ये देखकर लड़के का रंग उड़ गया और वो अफसोस के साथ हाथ मलने लगा कि क्यों मैंने केटू को दीवार की तरफ धक्का दिया। मगर अब क्या फायदा, जादूगर का वार चल गया था। उसने केटू को पत्थर बनाकर लड़के को तन्हा कर दिया था। अब अकेले लड़के के लिए निमटना उसके लिए आसान ना था। अचानक जादूगर की आवाज गूंजी, अब सुनो बेवकूफ बच्चे, मैं ना कहता था यहाँ से वापस चले जाओ, मगर तुमने इनकार कर दिया। अब तुम्हें पता चलेगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर जादूगर ने जादू का चाबुक लड़के की तरफ रवाना कर दिया। उसने चाबुक ने आते ही लड़के को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जहाँ चाबुक पड़ता वहां से खून निकल आता था। करीब था कि चाबुक खा खा कर लड़के की खाल पड़ जाती और वो मर जाता। अचानक एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग इस जगह नमूदार हुए और उन्होंने आते ही चाबुक को पकड़कर दो टुकड़े कर दिया और लड़के को हाथों पर उठाकर एक दरख्त के साए में ले गए। लड़का इस नेक दिल हस्ती को देखकर बोला, बाबा जान आप कौन हैं? हमारा नाम देवाल है बेटा। ये तुम्हारा कुत्ता केटू पहले हमारे पास रहता था, हमने ही वो सारे ताकत इसे बख्शी थी, इसकी वजह से वो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। तुमने उसको पत्थर की दीवार के साथ लगाकर बड़ी गलती की है। वो ये दीवार नहीं हटा सकता था क्योंकि ये इल्म हमने उसके हवाले नहीं किया था। लड़का ये सुनकर बाबा जी के पैरों पर गिर गया और रो रो कर कहने लगा, बाबा जी मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दें, मुझे असल में गुस्सा आ गया था, अभी बच्चा हूं ना। दीवाल बाबा लड़के की आबजारी से बहुत मुतासर हुए। उन्होंने उसकी कमर पर थपकी देकर कहा, घबराओ नहीं, जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी जूती अपने पैरों में पहन लो, फिर देखना क्या होता है। जो ही तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए इस जूती से कहना, हो जाओ शुरू, बस ये शुरू हो जाएगी। लड़के ने दीवाल बुजुर्ग की दी हुई जूती पाँव में पहनने के बाद अर्ज किया, बाबा केटू को भी ठीक कर दें। मगर दीवाल बुजुर्ग ने कहा, बेटा केटू अब उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम जादूगर का खात्मा नहीं कर देते। लड़का ये सुनकर उदास हो गया और जादूगर को खत्म करने चल पड़ा। दीवाल बाबा अचानक वहां से गायब हो गया। पत्थर की दीवार के पास आकर लड़के ने देखा केटू का बुत अभी तक वहीं पड़ा था। उससे लड़के को तैश आ गया और वो जादूगर को इबरतनाक सजा देने के लिए रवाना हो गया। जब दीवार 1 फुट के फासले पर रह गई तो उसने दीवाल बाबा की दी हुई जूतियों से कहा, हो जाओ शुरू। उसके ये कहते ही दोनों जूतियां उसके पैरों से निकली और टर टर दीवार पर बरसने लगी। जरा सी देर में जूतियों ने दीवार में इतना बड़ा सुराख कर दिया जिसमें से लड़का गुजर सकता था। चनाचे वो बड़े आराम से इस सुराख के जरिए दूसरी तरफ चला गया। दीवार के दूसरी तरफ जाते ही एक बहुत बड़े गिद्ध ने इस पर हमला कर दिया। लड़के ने फौरन जूतियों को पुकारा और वो फौरन उसके पैरों से निकलकर ठक ठक कर गधे को मारने लगी। अगले लम्हे गिद्ध मुर्दा होकर नीचे गिर गया। इस वक्त जादूगर की कड़कदार आवाज आई, इन जूतियों के घमंड में न रहना लड़के, मेरे पास इस कदर ताकतवर मंत्र है जो इन जूतियों का हशर नशर कर देंगे। मगर लड़के ने उसकी धमकी पर कान न धरे। वो लगातार सफर करता रहा। शाम होने तक वो जादूगर के महल में पहुंच गया। ये महल हजारों साल पुराना था। इतना डरावना महल उसने पहले कभी न देखा था। काले पत्थरों से बने हुए इस महल की छत पर लाखों उल्लू बैठे हुए थे। इन उल्लुओं ने लड़के को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे वो किसी को खबरदार कर रहे हों। वो एकदम उड़कर लड़के को मारने लगे। उनकी चोंचें कैंची की मानंद तेज थीं। लड़के ने इन्हें आते देखा तो दीवाल बाबा की जूतियों से चीख कर कहा, हो जाओ शुरू। जूतियां फौरन उसके पैरों से निकल गईं और उल्लू की दरगत बनाने लगी। उल्लुओं
ने हजामत बनने पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इतनी देर में दीवाल बाबा की जूतियों ने सारे उल्लुओं का सफाया कर दिया और दोबारा लड़के के पैरों में वापस आ गईं, मगर जादूगर के जादू के जोर से गायब होकर महल में जाकर छुप गया। लड़के ने इसका ताकुब किया, वो इसे महल के कमरों में ढूंढने लगा। महल इतना बड़ा था कि उसके कमरे खत्म ही नहीं हो रहे थे। लड़का जादूगर को ढूंढते ढूंढते थक गया, एक कमरे में बैठ गया। अचानक ही कमरा तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगा। लड़का बुरी तरह घबरा गया कि करे तो क्या करे। कमरे ने कई मील ऊपर जाकर इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन की जानब वापस आना शुरू कर दिया। लगता था कि वो पूरी कुव्वत से जमीन से टकरा जाएगा। लड़के को झुरझुरी आ गई, मगर कमरा जमीन से टकराने की बजाय दोबारा आसमान की तरफ उड़ने लगा। कमरा बार बार इसी तरह कभी ऊपर तो कभी नीचे आ जाता। जादूगर पता नहीं कहाँ छुपकर करतब दिखा रहा था। लड़का अब तक जूतियों की वजह से बचा हुआ था, जो अगर वो जूतियों को बेचता तो हो सकता था कि कमरा बीच बीच जमीन से टकरा जाता। खौफ और परेशानी से उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुसीबत से कैसे निजात हासिल करे। सोच सोच कर लड़के को एक तरकीब सूझ गई। चनाचे जो ही कमरा जमीन की जानब आया, उसने दरवाजे के पास जाकर झट बाहर छलांग लगा दी। पाँव में दीवाल बाबा की जूतियां होने की वजह से उसका बाल भी बाका न हुआ, जिसके बाद कमरा एक तरफ भाग निकला। लड़का फौरन समझ गया कि इस कमरे में जादूगर छुपा हुआ है और वो भागना चाहता है, लिहाजा इसने जूतियों से कहा, हो जाओ शुरू। जूतियां फौरन उस उड़ते हुए कमरे में जा घुसी। अगले ही लम्हे उस कमरे से जादूगर की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। वो चिल्ला रहा था, मेरे बाप की तौबा, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा जिंदगी में कभी गलत काम नहीं करूंगा बल्कि नेक बनकर रहूंगा। मगर जूतियों ने उसकी एक ना सुनी और धड़ाधड़ उसके सर पर पड़ती रहीं। लड़का आवाजों को सुनकर बहुत खुश हो रहा था कि अब कोई जादूगर के अंजाम को देखकर इंसानों को तंग नहीं करेगा। कुछ देर बाद जादूगर कमरे से बाहर आ गिरा। उसका बुरा हशर हो गया था, वो घड़ी पल में मरने ही वाला था। जूतियां मुसलसल उस पर बरस रही थीं। लड़के को इसकी सूरत बड़ी मकरूह लगी। का चूहे जैसा चेहरा, मेंढक जैसी आंखें और रीछ जैसा बदन देखकर लड़के को उससे बहुत नफरत महसूस हुई। उसने आगे बढ़कर उसके मुंह पर थूक दिया। इस लम्हे जूतियों ने जादूगर की खोपड़ी तोड़ दी, जिसके टूटते ही अंदर से मरी हुई छिपकलियां, बिच्छू और सांप निकलकर बाहर आ गिरे और जिंदा होकर जादूगर का गोश्त खाने लगे। जरा सी देर में उन्होंने उसका सारा गोश्त हड्डियों समेत निगल लिया और दोबारा मर गए। इस तरह इस नापाक जादूगर का खात्मा हो गया। लड़का दीवाल बुजुर्ग की जूतियां वापस करके अपने मुल्क आ गया। यहाँ पहुंचा तो पता चला कि मलका ठीक हो गई है और बादशाह इसका इंतजार कर रहा है। चनाचे लड़के ने बादशाह से बड़ा इनाम लिया और अपने घर को रवाना हो गया।